Welcome everyone. So we'll start with prayers. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Kathanchan Smrite Yasmin, Tuskaram Sukaram Bhavet, विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यनमामितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण बलराम की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री श्री निताई गौरांग की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय निताई गौर प्रेमनंदे हरि बोल हरे कृष्णा वेलकम एवरीवन so today we'll continue again our 11th chapter which we were discussing so the name of the 11th chapter is the universal form. And yesterday we saw that Arjuna requested Krishna that, oh Krishna, how you are pervaded in this universe by your form. So Krishna showed his universal form. Krishna showed that by this form I am pervaded in this universe. So Arjuna could see from the top of the universe to from the bottom of the universe to the top of the universe. Means from Garbhodakshay Vishnu to the Brahmaloka, the topmost planet of this material universe, that is Brahmaloka. Arjuna could see everything, and Arjuna saw past, present, future. All the demigods are there in the universal form of Krishna. And Arjuna also saw that except Pandavas, Krishna said. So Arjuna, by seeing, he saw that the form of Krishna, it was so dazzling, so glaring. The glaring effulgence was coming out, and it was like thousands of sun risen in the sky at one time. Suppose one sky is so dazzling, you cannot see from your naked eyes. So 1,000 suns, they simultaneously appear in the sky. What will happen? What will happen to us? We cannot even sustain our life. Everything will burn to ashes. That was the effulgence, dazzling effulgence, glaring effulgence, which was coming out from the body of Krishna, from the universal form. And Arjuna also saw, except Pandavas, all are entering the mouth of Krishna, that Virat Roop of Krishna, and getting crushed. All the Kauravas, everyone is entering the mouth. All the demigods are also very horrified, fearful. Indra, Chandra, Brahma, even Brahma, Lord Shiva, they're also fearful by seeing the universal form of Krishna. So Arjuna, by seeing this very horrifying, fearful feature of the Lord, Arjuna started wondering. He asked Krishna, oh Krishna, who you are? So Arjuna lost his composure and he was fearful, and he asked, who you are? I thought that you are my friend, but it doesn't appear that you are my friend. You are something. Who you are? So then Krishna said, Kalo Asmi, I am time. I am the destroyer of the world. Kalo Asmi, Lokakshaya. Lokakshaya means, Akshaya means Vinash, Chaya Karna. Lok matlab is this material world. So I am time. I have descended to destroy the world through the time. Lokakshaya Krita Pravriddho. And I am here in this world to engage all the people in different activities. You see, if there was no time, we cannot engage in the activities. It is time which is forcing us to engage in the different activities. Otherwise, we'll be at inertia.
So time is forcing us. So what is the time? Time is Krishna's impersonal form. Krishna has, we have already discussed that Krishna has personal feature and impersonal feature. So this time is impersonal feature of Krishna. Krishna only, impersonal, you cannot see, but it is there, imperceptibly acting upon all of us without any exception. And then Krishna, we understood that those who are surrendered to Krishna, for them, Krishna will come at the time of death and he will take him back to Krishna, his abode. But those who are not devotee of Krishna, they also have to surrender. Devotee surrenders to the beautiful form of Krishna, that is Shama Sundar. Those who are not devotees, they also surrender to Krishna, the time form. They must surrender, and that surrender will be forceful at the time of death. Time will snatch away everything. Time is very, very powerful. It separates of us. It separates everything. It will snatch away everything. Time is very powerful factor. Today we have something, tomorrow it will not be with us. It is just a matter of time. Time will take away everything from us. So time is the killer. So then those who are atheistic, those who are not chanting Krishna's name, those who are not taking out time for Krishna, time will show them the real feature at the time of death. Not only at the time of death, at different times, time is showing its real feature, but people are not able to understand. Those who are not dedicating time for Krishna, time will show its real feature, because time is energy of Krishna, and time is energy of Krishna, so time should be utilized for service of Krishna. But we don't have to. We are not using our time the service of Krishna. So time will destroy us. The same time will destroy us, because we are apparently thinking that I'm very busy, I don't have time to chant Krishna's name, to attend the classes, to read Bhagavad Gita, to perform spiritual activity. So same time will destroy us, because time is impersonal form of Krishna. So all the atheistic people, they have to surrender to Krishna at the time of death. We have already surrendered. But for the devotees, those who are serving Krishna, those who are giving time to Krishna, because time is energy of Krishna. So everything belongs to Krishna. Time is also of Krishna. This is not our time. So when we give time back to Krishna, Krishna gives us so much time, because whose property is time? Krishna is the time. So when we give time to Krishna for chanting, hearing, and all these things, Krishna will also give us time. You remember in 4th chapter we had discussed, Ye yatha mam prapadyante tams tathayo bhajamiham. Krishna said, the degree in which you surrender, in the same degree I also reciprocate. In the proportion you surrender, Krishna will reciprocate in that same proportion. So Krishna will never reciprocate unless we surrender. So when we give time to Krishna, Krishna also gives us time back. But the time when Krishna will give, it will be most precious time. Suppose you are wanting time for preparation, you want time during exam, you are sitting in exam, writing very important exam. That time you require time. So when you have given time to Krishna, Krishna will give time to that particular time. When you require utterly, you are utterly in need to get time, that time Krishna will give you time, because time is Krishna ही है. So बहुत ही crucial time पे Krishna will give you sufficient time. ये आप सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा. आपके लिए टाइम स्लो हो जाता है. Yes, this is a fact. When Krishna performed Ras Leela, you know how long that Ras Leela continued? We understand that in Sharad Purnima, in the dead of night, Krishna performed Ras Leela with gopis, right? In one night. एक रात में कृष्णा ने रास लीला की. You know what is the duration of that one night? You'll be surprised. That one night was Brahma's night. It was not earthly night. अर्थ का वो रात नहीं था जो हम लोग रात एक्सपीरियंस करते हैं 6-7 घंटे. वो जो रात थी वो ब्रह्मा की रात थी. और ब्रह्मा की रात हम लोगों ने 8th चैप्टर में डिस्कस किया है. हाउ लॉन्ग ब्रह्मा, हाउ फैंटास्टिक, इतना बड़ा है ब्रह्मा जी का एक दिन. उसी तरीके से रात 1000 महायुग जब रोटेट कर जाते हैं, दैट इज ब्रह्मा's one day.
सिमिलरली 1000 महायुग जब रोटेट करेंगे तो इतना ही बड़ा ब्रह्मा का रात भी है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर युद्ध ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांतम ते हो रात्र विदो जना। सो ब्रह्मा का जो एक दिन है, 1000 महायुग जब घूम जाता है। एक महायुग में कितने युग होते हैं? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये 4 युगों को मिला के एक महायुग होता है। इस तरीके से 1000 महायुग जब रोटेट करता है, ब्रह्मा का 12 घंटे होता है दिन, उसी तरीके से 12 घंटे रात होती। इतनी बड़ी रात कृष्णा ने रासलीला किया था। So we can never imitate Krishna, we can never understand who is Krishna. So because they gave themselves completely to Krishna, so Krishna gave them, that night was Brahma's night when there was Ras Leela. It was not our human night, that was Brahma's night. So Krishna gives time. When we give time to Krishna, then Krishna will give time. Otherwise Krishna is very calculative, he is very considerate. He is not doing everything and anything blindly. जो जिस डिग्री में कृष्णा के पास आएगा ना, उसको उतना ही रेसिप्रोकेट करेंगे। जो ज्यादा आएगा उसको ज्यादा रेसिप्रोकेट करेंगे। जो पूरा दे दिया उसको पूरा दे देंगे कृष्णा। जो अपने आप को दे दिया कृष्णा को, कृष्णा भी अपने आप को बेच देते हैं। कृष्णा सेल्स हिम आउट। चैतन्य चरितामृता में आता है, कृष्णा सेल्स हिम आउट टू दैट डिवोटी हु सरेंडर्स फुल्ली टू कृष्णा। Krishna becomes the servant. Like in Jagannath Puri, very beautiful pastime of Raghu, you would have heard or read. Raghu, he was a great devotee of Krishna. So when he was sick of Jagannath, वो बहुत बड़े भक्त थे जगन्नाथ जी के। जब वो बीमार हो गए, he was alone, nobody was there with him. So Jagannath would personally come and he will take care of him. He will pass stool, so Jagannath will clean that stool. So when one day Raghu saw, oh Jagannath, you are doing my service, I'll go to hell. So Jagannath said, no, just like my devotee, you take pleasure in my service, I also take pleasure in serving my devotees. So Jagannath is serving his devotees. So then Raghu said that you are the Lord, you should wipe out all my karma, because of which I am suffering. So Jagannath said, no, if I wipe out your karma, then I'll not get the opportunity to serve you. But I get pleasure in serving my devotees, so why should I do that? So even Jagannath also takes pleasure in serving his devotees. So Jagannath sells him out to that such devotees who have surrendered fully to Krishna. So this is the highest understanding which Chaitanya Mahaprabhu has given, which gopis have personally practiced, which Bhagavatam explains. Therefore Bhagavatam is revolutionary. Among all the literatures, Bhagavatam, we are discussing Bhagavad Gita. This is just ABCD of spiritual life. Please understand, this is not the everything what of spiritual life. Spiritual life इतना ही नहीं है जो हम लोग भगवद गीता में समझ रहे हैं। ये तो beginning है, ABCD है। जैसे एक स्टूडेंट नर्सरी में जाता है, ABCD अगर समझ लेता है, उसको लगता है मैं सब पढ़ लिया हूँ, तो इल्यूजन में। वो स्टार्ट है, अभी 10th है, 12th है, PhD, पता नहीं क्या क्या है। उसी तरीके से भागवतम अब जब पढ़ना शुरू, पूरा भक्ति का साइंस तो भागवतम है। Science of Bhakti is Bhagavatam. So Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, it is all offering that highest love and devotion of Bhakti. What is Bhakti? Highest order of Bhakti, which devotees have performed in Bhagavatam. By their personal example, they have shown. So this is what we have to learn. And human life is, so therefore Bhagavatam begins with Athato Brahma Jigyasa. भागवतम बिगिन होता है, भगवद गीता कहाँ एंड होता है? भगवद गीता का लास्ट श्लोक हम लोग डिस्कस करेंगे, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्णा बोल रहे हैं, यू गिव अप ऑल द रिलीजन एंड सरेंडर अनटू मी अलोन। यू डोंट सरेंडर टू सो मेनी गॉड्स, यू सरेंडर टू मी अलोन। So here Bhagavatam, Bhagavad Gita ends, and where Bhagavatam begins, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सतां वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किमुआ परेरीश्वर सद्यो रीति अवरुध्यते अत्र कृतभि शुश्रभि तत्क्षणात्। तो भागवतम की स्टार्टिंग के ओपनिंग वर्सेस हैं, उसमें भागवतम में वेद व्यास जी लिख रहे हैं, और भागवतम इज द राइपेंड फ्रूट ऑफ ऑल द लिटरेचर्स। सब कुछ लिखने के बाद वेद व्यास जी ने एंड में भागवतम लिखा था। भागवतम इज द लास्ट वर्क ऑफ श्रीमद् वेद व्यास, लास्ट वर्क है वेद व्यास जी का भागवतम। तो भागवतम में जो लिख रहे हैं वो सब कुछ का निचोड़ है, एंड है।
और वो स्टार्ट कैसे कर रहे हैं? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किमुआ परेरीश्वर। सो धर्म प्रोजित का ये भागवतम से सारे चीटिंग जो रिलीजन है ना, जो वेदों में बताए गए हैं, चीटिंग रिलीजन क्या है? इनकी वर्शिप करो ये मिलेगा, इनकी वर्शिप करो ये मिलेगा। चीटिंग रिलीजन मीन्स ऐसा चीज करने से जिससे आप इसी मटेरियल में फंसे रहें, इसको बोलते हैं चीटिंग रिलीजन। सो ऑल द चीटिंग टाइप्स ऑफ रिलीजन्स आर किक्ड आउट फ्रॉम द भागवतम। ये भागवतम का पहला श्लोक, स्टार्टिंग थर्ड श्लोक है। धर्म प्रोजित कैतव अत्र, कैतव धर्म, कैतव मतलब चीटिंग, धर्म धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, उसको किक आउट कर दिया गया भागवतम में। भागवतम में चीटिंग धर्म नहीं डिस्कस किया गया। भागवतम इज स्पॉटलेस पुराना। इन भागवतम हाईएस्ट प्योर डिवोशनल सर्विस इज डिस्कस्ड। और ये भागवतम स्टार्ट हो रहा। भगवत गीता में कहाँ एंड हुआ? सर्वधर्मान परित्याग, सारे धर्मों को परित्याग करके मुझे सरेंडर करो। और भागवतम स्टार्ट हो रहा है यहीं से कि भागवतम में कोई चीटिंग रिलीजन नहीं। कृष्णा के बारे में डिस्कशन होगा बस भागवतम में। कृष्णा एंड उनके बड़े बड़े जो महान भक्त हुए, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, कुंती महारानी, गोपीज, बड़े बड़े भक्तों के बारे में भागवतम में डिस्कशन है। सो अगर भक्त के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो भगवान भक्तों के लाइफ इन्वॉल्व होते ही है। सो भगवान के बारे में भी डिस्कशन हुआ है भागवतम। सो दैट इज भागवतम। भागवतम भगवत गीता जैसे 30 किताब मिला लो, इतना मोटा भागवतम है। 18,000 श्लोक है, भगवत गीता में केवल 700 श्लोक है। सो भक्ति इज समथिंग विच इज हाईएस्ट। तो हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है व्हाट इज भक्ति। थोड़ा बहुत जो हम कर रहे हैं उससे हमें थोड़ा बेस, बहुत ही फ्रेगमेंटल पोर्शन रियलाइजेशन हो रहा है भक्ति का। जितना हम इन्वॉल्व होंगे उतना हमें रेसिप्रोकेशन करेंगे कृष्ण। सो हम कृष्णा को टाइम दे तो कृष्णा हमें टाइम देंगे। सो यही 11 चैप्टर में अर्जुन देख पा रहे हैं और कृष्णा यही बता रहे हैं कि कालो अस्मि, आई एम टाइम। तो इस तरीके से कृष्णा बताते हैं। अर्जुन अब बिविल्डर हो गए हैं। अब अर्जुन क्या बोलेंगे कृष्णा को? प्लीज कृष्णा, वाइंड अप दिस हॉरिबल फीचर ऑफ योर्स एंड प्लीज शो मी योर विष्णु फॉर्म। तो अब अर्जुन जो है विष्णु फॉर्म ही, नारायण फॉर्म ही देखने के इच्छुक हैं। सो नाउ विल शेयर द स्क्रीन। सो कल हम लोगों ने यहां तक डिस्कस कर लिया था, संजय उवाचा 34 वर्ष तक। इसमें संजय बोलते हैं, संजय said to Dhritarashtra, O king, after hearing these words from the supreme personality of Godhead, Arjuna trembled, fearfully offered obeisances with folded hands and began falteringly to speak as follows. तो संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन इस तरीके से डर गए। अर्जुन अब क्या बोल रहे हैं? ओ ऋषिकेशा। तो मैंने ऋषिकेश का मतलब समझा रखा। व्हाट इज ऋषिकेश? ऋषिकेश मीन्स द मास्टर ऑफ द सेंसेस। एंड हु इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस? कृष्णा। So Arjuna is addressing Krishna as Rishikesha. Oh Rishikesha, oh master of the senses. तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वर्ड को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था अपने लास्ट क्लासेस में, आपने अटेंड किया है तो। ऋषिकेश मतलब मास्टर ऑफ द सेंसेस। all the senses belong to the master of the senses, Krishna. So therefore we should engage our senses in the service of Krishna. Then our senses will be enlivened. We'll feel jolly, happy, blissful. Not by gratifying the senses, but by using the senses in serving the master of the senses, ऋषिकेशा। क्योंकि ऋषिक मतलब होता है सेंसेस और ऋषिकेश मतलब द मास्टर ऑफ द सेंसेस। तो वही अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं, ओ ऋषिकेश, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. So demons are fearful and devotees are offering prayers. O great one who stands above even Brahma, you are the original master. Why should they not offer their homage up to you? O limitless one, O refuse of the universe, you are the invincible source, the cause of all causes, the transcendental to this material manifestation. So Krishna is beyond this material world. Krishna is the source, cause of all causes. Krishna is not the part of this world. Krishna created this world. You are the original personality of Godhead. See, Krishna Arjuna is saying, you are the original personality of Godhead.
You are the only sanctuary of this manifested cosmic world. You know everything, and you are all that is knowable. You are above the material modes. Oh, limitless form, this whole cosmic manifestation is pervaded by you. So, Krishna is everywhere present. His energies are working very mysteriously, very mystically. आप देखें, मैं यहाँ पर एक दिन चैंटिंग कर रहा था यहाँ अपने टेम्पल में. हमारे मंदिर प्रेमाइसेस में बनाना का पेड़ लगे हुए. So I was seeing in the morning, I was chanting. So I observed there was one newly grown up bud of banana leaf. वो जो banana leaf होता है वो बाद में पूरा फैलता है. पहले वो एक डंडी के जैसे निकलता है और बहुत ही delicate होता है, बहुत soft होता है. Like a stick, it of about 2 feet or 3 feet length and very delicate, and it is spiraled. It is not open, it is closed, packed up. And the next day I saw that was fully blossomed and it had become a full leaf. That same tender, soft, wrapped stick of 2 feet. Next day it became fully blossomed, opened leaf. Just see how it happens so nicely. It is happening. तो डिजाइन कर रहा है और पत्ते इतने सिमेट्रिक, इतने अच्छी डिजाइनिंग. वही सिमेट्री दूसरे पत्तों में भी है. सारे बनाना के लिए वही सिमेट्री है. तो कितना परफेक्ट डिजाइन है, कितना परफेक्ट एनर्जी काम कर रही है भगवान की. सो कृष्णा इज परवेडेड एवरीवेयर एंड मिस्टिकली एवरीथिंग इज हैपनिंग. आप अपने अंदर ही देखो ना, हम लोग खाते हैं, मिस्टिकली सारी चीजें हो रही हैं, डाइजेशन हो रहा है, सब हो रहा है, हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग कॉन्शियस भी नहीं है, सब हो रहा है. हाउ मिस्टिकली कृष्णा इज डूइंग एवरीथिंग. करेक्ट. सो दैट्स व्हाट हियर अर्जुना इज सेइंग. You are air, fire, water, and you are the moon. You are supreme controller and the grandfather. Thus, I offer my respectful obeisances unto you 1,000 times, again and again. So ultimately, Arjuna is saying you are everything. Obeisances from the front, from behind, from all sides. Oh, unbounded power. You are the master of the limitless might. You are all pervading and thus you are everything. सो अर्जुन अब जो है बहुत अच्छा एक लाइन बोलेंगे यहाँ पर. आई हैव इन द पास एड्रेस्ड यू एज ओ कृष्णा, ओ यादव, ओ माय फ्रेंड, विदाउट नोइंग योर ग्लोरीज. प्लीज फॉरगिव व्हाटएवर आई मे हैव डन इन मैडनेस और इन लव. सो अब अर्जुन को रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने पास्ट में बहुत सारे फ्रिवलस एक्टिविटी किए हैं, मजे लिए हैं कृष्ण के, मैंने कटाक्ष किए हैं. अब उनको लग रहा है यार मैंने तो गलत किया यार. अब ये कृष्णा तो मेरे फ्रेंड नहीं है, तो बहुत ही जबरदस्त है ये तो. अनलिमिटेड, ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी, इज सो लिमिटलेस. सो अब अर्जुन जो है वो फॉरगिवनेस मांग रहे हैं. Whatever I have done, please forgive me. I have dishonored you many times while relaxing or while lying on the same bed or eating together. So उनको अब याद आ रहा है, खाते समय वैसे एक सेम बेड पे लेटते हुए हमने आपके मजे लिए हैं, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. समटाइम्स अलोन एंड समटाइम्स इन फ्रंट ऑफ मेनी फ्रेंड्स. कभी कभी अकेले मजे लिए आपके, कभी कभी सारे फ्रेंड्स के बीच में मैंने आपके मजे लिए. सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर ऑल माई ऑफेंसेस. सो हमें भी भगवान को भी, हम भगवान प्रति हम लोगों ने जो भी अपराध किए हैं हमें क्षमा मांग लेना चाहिए भगवान से. नहीं तो कृष्णा थ्रू हिज टाइम फीचर ही विल फिनिश. You are the father of this complete cosmic manifestation, the worshipable chief, the spiritual master. No one is equal to you, nor can anyone be one with you. Within the three worlds, you are immeasurable. So यहाँ पर देखो क्लियर इंस्ट्रक्शन भगवद गीता में, कृष्णा के बराबर कोई नहीं है. In fact, in Upanishad also there is one beautiful verse which comes in Chandogya Upanishad. It says that Chandogya Shvetashvatar Upanishad, any of the Upanishad, न तस्य कारणं करणं च विद्यते, न तत्समचाधिकस्य दृश्यते, पराशक्तिर्विविधा एव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च. बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है उपनिषद का. इसमें बता रहे हैं न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्सम च अधिकस्य दृश्यते. भगवान के को न तो कोई बराबर है, न तो उनसे कोई ऊपर है. वही सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं. नो वन इज इक्वल टू यू, नॉर कैन एनीवन बी वन विद यू. कोई भगवान से बराबर ही नहीं कर सकता, भगवान के ऊपर की तो छोड़ो, और कोई भगवान के साथ एक नहीं हो सकता. वी ऑल आर इंडिविजुअल्स एंड कृष्णा इज सुप्रीम.
and nobody can equal with Krishna. So there is no doubt about who is supreme and or who is not supreme. So in Bhagavad Gita it is very clear Krishna is supreme. Because in universal form Arjuna is seeing Lord Shiva also, he is seeing Brahma also, he is seeing Durga also, everyone is there present in the universal form. But Krishna is saying, Arjuna is saying that you are the supreme. He is not saying, oh, your Shiva form is supreme or Durga form is no. Correct? And the last verse also, whole Bhagavad Gita is all about Krishna's supremacy. From 7th chapter onwards, we are seeing this. Right? Many times we saw that where Krishna said, I am the supreme. Matta parataram nanyat. Nobody is superior than me. 7th chapter. 8th chapter also it came. 9th chapter. 8th chapter का last श्लोक क्या था? वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव ज्ञानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम. लास्ट वर्स में कृष्णा क्या बोल रहे हैं? मेरी भक्ति करने से सारे रिजल्ट मिल जाएंगे आपको. जो भी आप रिचुअल्स, सैक्रिफाइस, पेनेंस, चैरिटी जो भी करते थे, जितने जिस जिस देवी देवता के करते थे, उन सब का रिजल्ट जो आपको मिल रहा था, मेरी सर्विस करने से अकेले सब मिल जाएगा. 8 चैप्टर में भगवान ने बोला. 9 चैप्टर तो पूरा यही इंस्ट्रक्शन. 9 चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस. 10 चैप्टर में भगवान ने अहम सर्वस्य प्रभो, everything is coming from me, I am the source of everything. Here in 11th chapter also. So Bhagavad Gita is open. Krishna is claiming his supremacy every now and then. But because people don't read Bhagavad Gita as it is, authorized Bhagavad Gita, they don't refer the authorized version of Bhagavad Gita which Prabhupada has given us. Even though it is very clear, but the blessing is not there. No, unless there is a blessing of a pure devotee, we can never understand Bhagavad Gita. Correct? Unless there is a blessing of a spiritual master, we can never understand Bhagavad Gita. This is very important. हम भगवान को जो है अपने इंटेलिजेंस नहीं समझ सकते. हमें ब्लेसिंग चाहिए होती है भक्तों की, आचार्यों की, प्रभुपाद जैसे भक्तों की, शुद्ध भक्तों की, तभी हमें भगवद गीता समझ में आता है. इसीलिए तो इसको कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोला गया है. अगर ये किताबी थ्योरेटिकल नॉलेज होता तो कोई भी पढ़ के समझ जाता है ना. तो क्योंकि ये सुप्रीम साइंस है, ये कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए लोगों को पढ़ के समझ नहीं आता. इसके लिए आपको भक्तों की ब्लेसिंग, कृपा चाहिए, तभी समझ में आता है. ओके, सो यहाँ अर्जुन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहे हैं. वर्ड्स विद इन 3 वर्ल्ड यू आर इमेजरेबल, नोबडी इज इक्वल टू यू. सो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये परपोर्ट प्रभुपाद लिख रहे हैं. विल रीड इट लेटर. यू ऑल कैन रीड द परपोर्ट्स. परपोर्ट्स पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग और रिफाइन हो जाएगी आपकी, और थ्रू हो जाएंगे आप, और कन्विंस्ड हो जाएंगे आप. Then Arjuna says, you are the supreme lord to be worshipped by every living being. Thus I fall down to offer you my respects and ask your mercy. Please tolerate the wrong that I may have done into you and bear with me as a father with his son. So यहाँ पर अर्जुन अब समझ गए, रियलाइज कर रहे हैं, और अब वो क्षमा मांग रहे हैं कि प्लीज टॉलरेट माई रॉन्ग डूइंग्स. कैसे टॉलरेट करना? जैसे फादर अपने बेटे की जो गलत हरकतें उसको टॉलरेट करता है, जैसे एक दोस्त अपने दोस्त की जो बचकानी हरकत है उसको टॉलरेट करता है, जैसे एक लवर अपनी बिलवेड की एक्टिविटीज को टॉलरेट करता है, उसी तरीके से आप भी प्लीज टॉलरेट माई रॉन्ग डूइंग्स. सो यहाँ पर अर्जुन जो है कृष्णा से फॉरगिवनेस मांग रहे हैं. So after seeing this universal form which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time my mind is disturbed with fear. So अर्जुन जो है अब यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं खुश भी हूँ लेकिन बहुत भयभीत भी हूँ. Therefore please bestow your grace upon me and reveal again your form as the personality of Godhead, O Lord of the Lords, O abode of the universe. तो यहाँ पर अब अर्जुन एक और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे ये तो ठीक है दिखा दिए, अब मुझे अपना 400 नारायण फॉर्म दिखाइए. O universal Lord, I wish to see you in your 4-armed form with helmeted head and with club, wheel, conch and lotus flower in your hands. I long to see you in that form. So अर्जुन अब जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे नारायण फॉर्म दिखाइए. सो श्री भगवान उवाचा. अब कृष्णा फिर से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? The blessed Lord said, my dear Arjun, happily do I show you this universal form within the material world by my internal potency. No one before you has ever seen this unlimited and glaringly effulgent form. So कोई भी इस विराट रूप के इससे पहले नहीं देखा है.
तो जैसे कि हम लोग, अगर आप लोगों ने देखा होगा महाभारत श्री कृष्णा का जो रामानंद सागर एपिसोड, उसमें जब भगवान पीस प्रपोजल लेके गए थे तो वहां दुर्योधन किडनैप करना चाह रहा था, बंदी बनाना चाह रहा था, तो वहां पर भी कृष्णा ने यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया था, करेक्ट। बट वो यूनिवर्सल फॉर्म इज डिफरेंट, यहाँ पर जो यूनिवर्सल फॉर्म है ये डिफरेंट। ये तो पूरा टाइम यूनिवर्स, इसमें तो पूरा ब्रह्मांड दिखाया भगवान, वहां जस्ट एक ये अपनी इंटरनल पोटेंसी से एक यूनिवर्स, एक विराट रूप दिखाया था, बहुत ही एक सिग्निफिकेंट छोटा सा विराट रूप था। यहाँ पर अनलिमिटेड विराट रूप दिखा रहे हैं कृष्ण। सो दोनों डिफरेंट है विराट रूप। ये टाइम वाला है, इसमें टाइम के तीनों फीचर्स दिखा रहे हैं, वहां पर कुछ और दिखा रहे हैं। सो दोनों को मिस्टेक ना करें, इसलिए यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं इससे पहले किसी को नहीं दिखाया था मैंने, ये केवल तुम हो जो पहले देख रहे हो। और ये जो विराट रूप है, O best of the Kuru warriors, no one before you have ever seen this universal form of mine. For neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity or similar activity can this form be seen. Only you have seen this. So केवल भगवान के जो भक्त हैं वही भगवान के एक्टिविटीज को, लीला को, फॉर्म को देख सकते हैं। और किसी भी एक्टिविटी से आप चाहे वेद पढ़ लो, चाहे सैक्रिफाइस कर लो, चाहे चैरिटी दे लो, कुछ करने से भी भगवान को हम नहीं देख सकते, समझ सकते। तो यहाँ पर कृष्णा इसको क्लियर कर रहे हैं। सो फिर कृष्णा बोल रहे हैं योर माइंड हैज बीन पर्टर्ब्ड अपॉन सीइंग दिस हॉरिबल फीचर ऑफ माइन। सो यहाँ कृष्णा भी बोल रहे हैं ये जो मेरा जो यूनिवर्सल फॉर्म है, दिस इज हॉरिबल फीचर ऑफ माइंड, मीन्स ये जो टाइम है इट इज वेरी वेरी हॉरिबल। टाइम फीचर ऑफ कृष्णा इज वेरी हॉरिबल फीचर। नाउ लेट इट बी फिनिश्ड। सो उसको फिनिश करते हैं। माई डिवोटी बी फ्री फ्रॉम ऑल डिस्टर्बेंसेज विद अ पीसफुल माइंड यू कैन सी द फॉर्म यू डिजायर। तो उसके बाद तुरंत भगवान जो है वो नारायण फॉर्म दिखाते हैं। सो इसमें कृष्णा संजय बोल रहे हैं Sanjay said to Dhritarashtra, the supreme personality of Godhead Krishna, while speaking thus to Arjuna, displayed his real four-armed form, and at last he showed him his two-armed form, thus encouraging the fearful Arjun. So यहाँ पर अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया था कि फोर आर्म्ड फॉर्म दिखाइए, नारायण फॉर्म दिखाइए। सो कृष्णा ने फोर आर्म्ड फॉर्म दिखाया, लेकिन कृष्णा एक और फॉर्म दिखाते हैं अर्जुन को जो कि अर्जुन ने रिक्वेस्ट नहीं किया था। वो क्या था? टू हैंडेड फॉर्म, श्याम सुंदर मुरलीधर फॉर्म। तो कृष्णा ने वो भी दिखाया। अब उसको दिखाने के बाद क्या बोलेंगे कृष्णा, देखो, क्योंकि इस श्लोक में क्लियर हो गया द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा व्हाइल स्पीकिंग दस टू अर्जुन डिस्प्लेड हिज रियल फोर आर्म्ड फॉर्म। फोर आर्म्ड फॉर्म दिखाया एंड एट लास्ट ही शोड हिम हिज टू आर्म्ड फॉर्म। तो अभी टू आर्म्ड फॉर्म में दिखाए हैं, टू आर्म्ड फॉर्म मैनिफेस्ट कर लिए, फोर आर्म्ड फॉर्म अनमैनिफेस्ट हो गया, अभी टू आर्म्ड फॉर्म को मैनिफेस्ट किया है अर्जुन के सामने। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं? अर्जुन उवाचा, अर्जुन क्या बोल रहे हैं? When Arjuna thus saw Krishna in his original form, he said, seeing this human-like form, so very beautiful, my mind is now pacified and I am restored to my original nature. So यहाँ पर एक वर्ड यूज किया अर्जुन ने, दृष्टवेदम मानुसम रूपम, जो मनुष्य जैसा रूप है। मतलब मनुष्य जैसा रूप कैसा है? टू हैंड, दो हाथों वाला। तो टू हैंडेड फॉर्म जैसे ही अर्जुन ने देखा तो वो बहुत ही खुश हो गए, उनका माइंड पैसिफाई हो गया। अब इस फॉर्म के लिए कृष्णा क्या बोल रहे हैं? जो ये दो हाथों का जो टू हैंडेड फॉर्म है, इसके लिए कृष्णा क्या बोल रहे हैं? सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्ट्वा दृष्ट्वासियन्मम देवापि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। सो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? The blessed Lord said, my dear Arjun, the form which you are now seeing is very difficult to behold. तो जो टू हैंडेड वाला फॉर्म है, जो कृष्णा का ओरिजिनल फॉर्म है, इसके लिए कृष्णा क्या बोल रहे हैं? इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बिहोल्ड, इवन द डेमी गॉड्स आर एवर सीकिंग द अपॉर्चुनिटी टू सी दिस फॉर्म विच इज सो डियर। तो इसमें कृष्णा क्या बोल रहे हैं? देवा अपि यस्य रूपस्य, देवता लोग भी इस रूप को देखने के लिए लालायित हैं। ऑलवेज दे आर एस्पायरिंग टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू सी द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ कृष्णा। भागवतम में एक पास टाइम आता है, उसमें इवन महाविष्णु जिनके बॉडी से अनलिमिटेड यूनिवर्स निकल रहे हैं, इवन ही वाज आल्सो अट्रैक्टेड बाय द फॉर्म ऑफ कृष्णा। ही वांटेड टू हैव दर्शन ऑफ टू हैंडेड फॉर्म ऑफ कृष्णा, सो ही परफॉर्म्ड वन लीला एंड बाय इन दैट लीला 10 sons of Brahmana were dying one after another. अर्जुना टुक वाव। अगर इस बार, क्योंकि पहले के टाइम पे
अगर बेटे का डेथ फादर से पहले हो गया, दैट मीन्स किंग इज रिस्पॉन्सिबल, किंग इज नॉट रूलिंग द हिज किंगडम वेरी प्रॉपरली, ही इज डूइंग सम रिलीजियस एक्टिविटी, ही इज नॉट रिलीजियस पर्सन, वो गोलमाल कर रहा है, इसलिए प्रजा जो है सफर कर रही है। तो प्रजा में अगर सफरिंग है, इसका केवल और केवल कारण है राजा, राजा ही पूरा का पूरा कारण है। राजा अगर रिलीजियस है, भगवान का भक्त है, तो प्रजा में, किंगडम में कोई प्रॉब्लम, कोई फैमिन, कोई ड्रॉट, कोई भुखमरी कुछ नहीं होता। So, जैसे ही ब्राह्मण के पुत्र की डेथ हुई, उसने राजा को क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया कि समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग, मे बी द किंग इज नॉट रूलिंग प्रॉपरली, ही इज डूइंग सम इरिलीजियस एक्टिविटी। उसने तुरंत क्रिटिसाइज करने लगे। और उसमें ये द्वारिका का इंसिडेंस था। तो द्वारिका के राजा तो कृष्ण थे, द्वारिकाधीश। तो अर्जुन वाज वेरी एंग्री अपॉन हियरिंग दिस स्टेटमेंट। सो अर्जुन ने बोला, एक उसके बेटे का डेथ हो गया, 2 बेटा मर गया, 3 बेटा, 4 बेटा मरे जा रहे हैं, अर्जुन ब्राह्मण का बेटा। सो वो बोल अर्जुन को बहुत ही गुस्सा आया जब उसने ऐसा स्टेटमेंट बोला। तो अर्जुन ने बोला, इस बार मैं तुम्हारे बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगा, और नहीं प्रोटेक्ट कर पाए तो आई विल डाई, आई विल किल माई सेल्फ, मैं आग अग्नि में समाधि ले लूंगा। सो फिर से वो अर्जुन ने क्या किया, पूरा कवच से ढक दिया उसके घर को, पूरे कवच से ढक दिया। फिर भी जो ब्राह्मण का पुत्र हुआ, फिर से उसका डेथ हो गया। अर्जुन को समझ में नहीं है क्या हो रहा है, इस कवच को तो कोई यमराज भी नहीं भेद सकते, तो कौन ऐसा कर रहा है। अर्जुन नहीं समझ पाए। देन अर्जुन मरने वाले थे, फिर कृष्णा ने बोला, रुको रुको, चलो हम ढूंढते हैं। तो कृष्णा अर्जुन को लेकर ढूंढने चलते हैं, और कहाँ पहुंच जाते हैं पता है, ब्रह्मांड के बियॉन्ड चले जाते हैं। ये मटीरियल यूनिवर्स को पेनिट्रेट करके मटीरियल वर्ल्ड के बाहर चले जाते हैं। कहां पर, महाविष्णु जहां रहते हैं, और वहां पर, तो वहां पर जाते हैं कृष्ण अर्जुन को लेकर। तो अर्जुन वहां देखते हैं वो ब्राह्मण के सारे बच्चे तो महाविष्णु के पास है। तो अर्जुन समझ आता, अच्छा ये महाविष्णु की लीला थी। सो भागवतम में पास टाइम आता है, तो महाविष्णु ने ऐसा क्यों किया, वो ब्राह्मण के सारे पुत्रों को क्यों लिए, वो क्यों लेते गए, क्योंकि महाविष्णु भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। Even Mahavishnu was so captivated by the beautiful form of Krishna that he wanted to have darshan, glimpse of beautiful form of Krishna. Krishna was so charming, unlimitedly he was attractive. इसीलिए कृष्णा का एक नाम है मदन मोहन। मदन मोहन मतलब जो कामदेव को भी मोह ले। कंदर्प, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में, कंदर्प कोटि कमणीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। जो गोविंद है उनका रूप इतना मनमोहक है, इतना सुंदर है कि कंदर्प मतलब कामदेव, करोड़ों कामदेव भी मैच नहीं कर पाएंगे कृष्णा की ब्यूटीज, इतने सुंदर है। इसलिए कृष्णा का नाम मदन मोहन। तो Krishna's form is very beautiful. वही इसलिए यहाँ पर कृष्णा बोल रहे हैं, even the demigods, forget about demigod, even Mahavishnu is always anxious, aspiring to see the, he is wanting, he is seeking the opportunity to see the form of Krishna. So भागवतम में ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, भागवतम में it is all the instructions are practically demonstrated. यहाँ पर कृष्णा क्या बोल रहे हैं, even the demigods are ever seeking the opportunity to see the form, correct? तो भागवतम में ये पास टाइम आता है, महाविष्णु लालायित है, ही इज एस्पायरिंग टू सी द फॉर्म ऑफ कृष्ण। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो भगवान शिव लालायित थे भगवान कृष्ण को देखने के लिए। सो नंदगांव में वो गए, वहां पर वेश बदल के कृष्णा का दर्शन पाने के लिए, लेकिन यशोदा मैया ने मना कर दिया, ये भभूत लगा कि ये कौन बाबा आया, नहीं दर्शन दूंगी तुमको, मेरा लाला डर जाएगा। तो शिव भगवान वहीं जाके तपस्या में बैठ गए, और यहाँ कृष्णा रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, शांति नहीं हो रहे हैं। तो यशोदा मैया चिंता में पड़ गई कि क्या हो गया, लाला को रो क्यों रहा है। तो उन्होंने सबको बुलवाया, ब्राह्मणों को बुलवाया, सब करवा, लेकिन जो कृष्णा रुक ही नहीं रहे, रोए जा रहे हैं। सो फिर बाद में उनको किसी ने बोला कि वो जो बाबा है ना उसको बुलाओ, वो कुछ करेगा। तो बाबा जब आते हैं, सो भगवान शिव रूप बदल कर आए थे, बाबा का रूप लेकर आए थे। तो जब सब भगवान कृष्ण का दर्शन पाते हैं भगवान शिव, तो भगवान कृष्ण, एक्चुअली लीला था, भगवान कृष्ण जो है शिव को दर्शन देना चाहते थे अपना, तो इसलिए लीला करी कि रोए जा रहे हैं। जैसे ही कृष्णा को भगवान शिव ने देखा और शिव ने कृष्ण को देखा तो भगवान कृष्ण शांत हो गए। सो इस पास टाइम ये भागवत में आता है, मतलब ये कृष्णा की लीला है। जब हम जाते हैं नंदगांव तो वहाँ ये पास टाइम वहां पर हम सुनते हैं।
तो इस पास टाइम से पता चलता है कि इवन लॉर्ड शिवा इज ऑलवेज डिजायरिंग टू हैव फॉर्म दर्शन ऑफ कृष्ण। जब भगवान देवकी के गर्भ में थे तो भागवत में आता है कि ऑल द डेमीगॉड्स वुड कम टू गेट द दर्शन ऑफ द लॉर्ड। सारे देवता उस कारागार में, मथुरा में कारागार में आते थे डेली दर्शन करने के लिए भगवान को। तो उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसमें ब्रह्मा जी लोग और सारे देवता लोग बोलते हैं, स ओम सत्य परम सत्य व्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। तो इस श्लोक को बोलते हैं सत्य श्लोक। मतलब इसमें इतनी बार सत्य वर्ड यूज हुआ है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप पढ़ोगे ये श्लोक, भागवत में आता है कि कृष्ण आप ही सत्य हैं, आप ही परम सत्य हैं, आप सत्यों के सत्य हैं, आपसे सारे सत्य निकल रहे हैं, आप जो सत्य हैं उनके शेल्टर हैं। सत्य वर्ड ही यूज किया है उसमें ब्रह्मा। ओम सत्य परम सत्य व्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। बहुत सुंदर वर्ष है, भागवत में आता है। तो ये जो सारे इंस्ट्रक्शन ये भागवत में कृष्णा ने और अलग अलग पास टाइम से ये प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है। तो इसलिए जो भगवद गीता और भागवतम पढ़ लेता है ना, उसको कोई डाउट नहीं रह जाता कि लाइफ में करना क्या है, किसको सरेंडर करना है, मनुष्य का जीवन क्यों मिला है, कहाँ जाना है। एवरीथिंग बिकम्स वेरी क्रिस्टल क्लियर। सो ये श्लोक में यहाँ भगवान वही चीज बता रहे हैं कि when the demigods are ever seeking the opportunity to see the form of Krishna which is so dear, और मर्सीफुली कृष्णा, यहाँ पर देखो प्रभुपाद ने लिखा भी है कि beyond that universal form, the form of Krishna as 200 man is still more difficult to see even for the demigods like Brahma and Lord Shiva. They desire to see him, and we have evidences in the Srimad Bhagavatam that when he was supposed to be in the womb of his mother Devaki, all the demigods from heaven came to see the marvel of Krishna. They even waited to see him. A foolish person may deride him, but that is not ordinary person. Krishna is actually desired to be seen even by demigods like Brahma and Shiva in his two-armed form. So बहुत ही अच्छा भागवतम। सब लोग, I will request after Bhagavad Gita this all of you please start reading Bhagavatam. Very revolutionary Bhagavatam is. So भागवत कृष्णा का हम दर्शन क्यों नहीं कर पाते, कृष्णा दिखते क्यों नहीं? यहाँ पर कृष्णा ने ऑलरेडी 7 चैप्टर में याद करो श्लोक जिसमें कृष्णा बोल रहे हैं कि योग माया समावृता मोहितम ना भिजानाति, बाई माई योग माया पोटेंसी आई कवर माई सेल्फ। सो जो डिमोनियक लोग हैं मुझे नहीं देख पाते, वही यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं। एज वी हैव सेवरल टाइम्स डिस्कस्ड, कृष्णा इज कवर्ड बाय हिज योग माया पोटेंसी। योग माया समावृता 7 चैप्टर कृष्णा बोल रहे हैं ना। He is not to be seen or revealed by anyone and everyone. Only by one to whom he reveals himself can be seen. Can he be seen? This is confirmed in the Vedic literatures. For one who is surrendered soul, the absolute truth can actually be understood. The transcendentalist, by continuous Krishna consciousness and by devotional service to Krishna, can have this spiritual eyes opened and can see Krishna by revelation. सो कृष्णा की जब भक्ति करते हैं तो कृष्णा रिवील करते हैं, हमको ट्रांसेंडेंटल आईज मिलती हैं और हम भगवान को देख पाते हैं। सच अ रेवलेशन इज नॉट पॉसिबल इवन फॉर द डेमीगॉड्स। सो ये जो रेवलेशन ये डेमीगॉड्स को भी नहीं है ज्यादा। सारे ऑल द डेमीगॉड्स कैन नॉट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा व्हिच वी आर नाउ एबल टू डिस्कस बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद। So pure devotees are even beyond demigods. They are greater than the demigods. इसलिए भागवतम एक श्लोक आता है, कृष्णा बोलते हैं उद्धव को, आचार्य मां विजानीयात नाभिमन्येत करिचित नमर्त बुद्धा श्रूयेत सर्वदेव मयो गुरु। तो जो गुरु है, he is the embodiment of all the demigods. और कृष्णा बोल रहे हैं गुरु is as good as me. He is me only. आचार्य मां विजानीयात, you should know that Guru is me only. और कृष्णा बोल रहे हैं ही इज द सम टोटल ऑफ ऑल द डेमीगॉड्स। सो गुरु जो है उसका पोजीशन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद ओनली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इवन डेमीगॉड्स आर बिविल्डर्ड। मैंने पास्ट टाइम ही बताया, जो गोवर्धन लीला हुआ उसमें इंद्र बिविल्डर हो गए, ब्रह्मा विमोह लीला उसमें ब्रह्मा जी बिविल्डर हो गए। तो जब बड़े बड़े देवता बिविल्डर हो रहे हैं तो छोटे देवताओं की क्या कहना, है ना। सो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं एडवांस डिवोटीज आर ऑलवेज इन, इवन such revelation is not possible even for the demigods. Therefore, it is difficult even for the demigods to understand Krishna.
and the advanced demigods are always in hope of seeing Krishna in his two-handed form. So जो एडवांस डेमिगॉड हैं, भक्त हैं, वो भगवान की दो हाथों वाला जो फॉर्म है, टू हैंडेड फॉर्म है, उसको देखने के लिए हमेशा सीख करते हैं. फिर कृष्णा बोल रहे हैं, द फॉर्म विच यू आर सीइंग विद योर ट्रांसेंडेंटल आईज कैन नॉट बी अंडरस्टूड सिंपली बाय स्टडीइंग द वेदास, नॉर बाय अंडरस्टैंडिंग undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It is not by these means that one can see me as I am. तो भाई भगवान को कैसे देख सकेंगे हम इस फॉर्म में? यहाँ पर सीक्रेट रिवील हो रहा है. देखो, ये सीक्रेट लोगों को समझ में नहीं आता. ये सीक्रेट भगवान रिवील कर रहे हैं इस श्लोक में. ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आप सब लोगों को याद करना. प्लीज इसको मार्क कर लीजिए, इसको याद करना आप लोगों को. भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप. कृष्णा क्या बोल रहे हैं? माय डियर अर्जुन, only by undivided devotional service can I be understood as I am. भक्ति वर्ड क्या यूज किया है? भक्त्या तु अनन्या, अनन्य भक्ति से ही मुझे समझा जा सकता है और देखा जा सकता है. only by भक्ति, not by jnana, yoga, tapa, charity, not by any of the things we can understand Krishna. Please understand, Krishna can be only understood by bhakti. और भक्ति क्या है? इस श्लोक में कृष्णा ने बोला भक्ति से मुझे समझ सकते हो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज भक्ति. इसलिए अगला चैप्टर कृष्णा ने भक्ति बताया. 12 चैप्टर का नाम है डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग. तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि भक्ति है क्या. सो टुमारोज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड very interesting. We'll understand what is bhakti. Krishna explains. So यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं, only by undivided devotional service can I be understood as I am standing before you and can thus be seen directly. So भक्ति से भगवान को समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. देखो यहाँ पर ये लाइन, तो भगवान की जो mystery of understanding है केवल भक्ति से ही समझा जा सकता है. नहीं तो आप always be confused and bewildered. आप कितना भी, जैसे यहाँ पर कृष्णा ने बोला ना इसके पहले वाले श्लोक में, कितना भी शास्त्र पढ़ लें, वेदों का अध्ययन कर लें, आप भगवान को नहीं समझ सकते. इसलिए आप देखें बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं, सो कॉल्ड आचार्य, .p आचार्य, बोलते हैं IIT से हूँ, ये हूँ, अंग्रेजी बोलने लग गए. ये सब कोई क्वालिफिकेशन नहीं भगवान को समझने के लिए. प्लीज अंडरस्टैंड, बी एनलाइटेंड अबाउट दिस. यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं, you can enter into the mysteries of my understanding by bhakti. तो भक्ति है ना, तो जो है सबरी जो कि इलिटरेट थी, भील थी, कुछ नहीं ज्ञान था उसको, लेकिन वो गुरु के, अपने गुरु जो थे, सबरी के जो गुरु थे मतंग ऋषि, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करी और भगवान मिल गए उसको. भगवान श्री राम दर्शन देने चले गए. बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका दर्शन पाने के लिए लालायित हैं भगवान श्री राम का, वो भगवान श्री राम पर्सनली सबरी के घर जा रहे हैं, उसको कुटिया में उसको दर्शन दे रहे हैं. क्या भाग्य सबरी का. तो सबरी कोई पढ़ी लिखी और स्कॉलर नहीं है, वो तो लिटरेट भील है, वो तो जंगल में रहती है और उसको ये भी समझ नहीं है कि भगवान को कैसे आदर करना. वो जूठा करके वो भगवान खिला रही आउट ऑफ लव, और भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं क्योंकि भक्ति करी उसने. तो भक्ति से ही भगवान को समझा सकता है. ये जो बड़े बड़े आचार्य आजकल यूट्यूब में फेमस हो रहे हैं, ये सब नॉनसेंस लोग, ये कभी भगवान को नहीं समझ सकते, और जो इनको फॉलो कर रहे हैं वो भी कभी समझ नहीं सकते कृष्णा कौन है. वो इस कृष्णा कैन नेवर अंडरस्टैंड. यहाँ कृष्णा बता रहे हैं. तो यहाँ पर लास्ट श्लोक में कृष्णा ने एक श्लोक बोला भक्ति बताने के लिए, भक्ति क्या है, और 12 चैप्टर में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं. सो क्या भक्ति है, यहाँ पर कृष्णा लास्ट श्लोक है ये 11 चैप्टर का, ये बताएंगे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये भी आप लोगों को याद करना है. मद कर्म कृण मद परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा. तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं, मत कर्म कृण, मेरा कर्म करो, मतलब इंगेज इन माई डिवोशनल एक्टिविटी. मत परमो, मुझे सुप्रीम मानो. मत भक्ता, मेरा भक्त बनो. संग वर्जिता, और गलत संग से फ्री हो. संग वर्जित, जो बैड एसोसिएट, उसे वर्जित करो, उसे उसका संग मत करो. निर्वैर, और निर्वैरी बनो, किसी से द्वेष भावना मत रखो. सर्वभूत, सारे लिविंग एंटिटी से निर्वैर, कोई एनवियस फीलिंग नहीं होनी चाहिए. यह और ये अगर करोगे, स माम यू विल कम टू मी. Oh, my dear Arjun, one who is engaged in my pure devotional service, free from contamination of previous activities and from mental speculation, who is friendly to every living entity, certainly comes to me. So यहाँ पर इस श्लोक में कृष्णा बोल रहे हैं मत कर्म कृण,
कृष्ण का कर्म करना है, तभी हम भगवान के धाम जाएंगे। कृष्ण का भक्त बनना है, कृष्ण को परम मानना है कि कृष्णा इज द सुप्रीम। और गलत संग का हमें संग, गलत लोगों का संग नहीं करना है। संग वर्जिता जो ये वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब इवन जो है मेंटल स्पेकुलेशन भी नहीं करना है। और निर्वैर सारे लिविंग एंटिटी से कोई द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे हमारे साथ उसने हजारों गलतियां की, हमारे साथ गलत किया, बट वी शुड नॉट हैव एनवियस फीलिंग। यह समामेति, अगर हम ये इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, then we can go back to Krishna. Okay, so like with this 11th chapter ends over here. I'm going to share you the quiz link of today's class, so all of you please attend the quiz and check your understanding. With this I will stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Anant Koti Vaishnav Vrind ki jai. Nitai Gaur Prem Nande. Tomorrow is going to be the most important discussion, 12th chapter, so please tomorrow be present. एक दिन में 12 चैप्टर हो जाए, बहुत छोटा चैप्टर है, 20 श्लोक है केवल. टुमारो विल ट्राई टू फिनिश 12 चैप्टर एंड संडे देयर विल बी क्विज, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्विज. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय.